بغداد کا ایک بادشاہ، طاقت، دولت، شان اور شہرت، ان سب کے باوجود بھی بے سکون تھا۔ محل کی اونچی اونچی دیواریں جہاں اسے ہر عیش و آرام اور خزانوں کے ڈھیر لگے تھے، لیکن پھر بھی دل کو سکون میسر نہیں تھا۔ اس نے کئی علماء اور دانشمندوں کو بلایا تاکہ اس کے دل کی بے چینی کا کوئی حل نکال سکے، لیکن اس کی بے سکونی کا کوئی حل نہ ملا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا اور آسمانوں کی طرف دیکھا اور دعا مانگنے لگا، اے خدا، اب تو ہی بتا میری بے چینی کا سکون کیا ہے۔ اتنے میں ایک خادم آیا اور اطلاع دی اور کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، محل کے باہر ایک درخت کے نیچے ایک فقیر بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا جواب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حیران ہوا، جس کا حل بڑے بڑے علماء نہیں جان سکے وہ اس فقیر کیسے جان سکتا ہے؟ لیکن بے چین دل نے نہیں مانا اور اس نے فقیر کو محل میں بلانے کو کہا۔ اس کا میلا پھٹا پرانا لباس، اس کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تم کون ہو؟ تمہیں کیسے پتا کہ میری کیا پریشانی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ فقیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میں ایک مسافر ہوں۔ اگر آپ سچ میں اپنے دل کا سکون چاہتے ہو تو آپ مجھے کل تنہا اس باغ میں ملنا۔ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اس رات بادشاہ فقیر کی باتوں سے سکون میسر کر رہا تھا۔ دوسرے دن صبح کا سورج طلوع ہوا۔ بادشاہ فقیر سے ملنے بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ دیکھا کہ فقیر ایک درخت کے نیچے پرسکون اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے سکون اور آنکھوں میں ایک روشنی تھی۔ بادشاہ کہنے لگا، بتاؤ میرے بے سکونی کی کیا وجہ ہے؟ فقیر کہنے لگا، کیا پہلے اس بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ تمہاری بے چینی کی کیا وجہ ہے۔ پھر فقیر کہنے لگا، کیا تم نے کبھی کسی غریب یا ضرورت مند شخص کی مدد کی ہے؟ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور سر جھکا کر کہنے لگا، نہیں، لیکن کسی کی مدد کرنا بھی سکون کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت بادشاہ نے کہا، یہ میرے لیے کارگر ہو سکتا ہے، یہ میں کیسے مان لوں؟ یہ ناممکن ہے۔ فقیر کہنے لگا، اگر اس بات کا یقین نہ ہو تو کل میرے ساتھ چلو، لوگوں کے بیچ رہ کر ان کا تجربہ کرو اور ان کی زندگیوں کو نزدیک سے قریب سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ فقیر کے کہنے پر بادشاہ نے اس بات کی تہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ پھر دوسرے ہی دن اپنا شاہی لباس اتار کر ایک عام انسان کی طرح فقیر کے ساتھ دوسرے دن ایک گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کچی سڑکیں، کھیت اور پہاڑ اور لوگوں کو محنت و مشقت کرتے دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، لوگ اس طرح سے بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیونکہ بادشاہ اپنے محل کے چار دیواری سے پہلی بار باہر نکلا تھا۔ فقیر نے بادشاہ کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں لے گیا اور ایک چوراہے پر بٹھا دیا اور کہا، اب تم ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو اور ان کی زندگیوں اور لوگوں کا مشاہدہ کرو۔ بادشاہ دیکھا کہ ایک موچی چپل سیکھ رہا تھا اور ایک بڑھئی لکڑی کاٹ رہا تھا۔ ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کرا رہی تھی اور ایک کسان اپنی بیلوں کے ذریعے اپنے کھیت میں بیج بو رہا تھا۔ یہ دیکھا تو بادشاہ کہا، یہ لوگ اتنی محنت و مشقت کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ خوش کیوں ہیں؟ فقیر کہنے لگا،
क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी के हर छोटे छोटे लम्हात को दिल से महसूस करते हैं और छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं और उसमें खुश रहते हैं। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ बड़ी खुशियां ही ढूंढी है, छोटी चीजों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। ये बात सुनकर बादशाह के दिल को थोड़ा सा करार आया, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह सुकून महसूस नहीं कर रहा था। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत बाजार में आई, लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस वक्त बादशाह ने अपने पास के कुछ सिक्के उस औरत को दिया। वो औरत खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो औरत बादशाह को बहुत सी दुआएं दी और वहां से चली गई। उस वक्त बादशाह ने कहा, ये छोटा सा अमल मेरी रूह को सुकून दे रहा है। फकीर कहने लगा, यही वो पहला अमल है बादशाह सलामत, दूसरों की खुशी में खुशी महसूस करो। बादशाह को ये सबक गहरा लगा। बादशाह कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, मुझे और मजीद सिखाओ ताकि मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं। दूसरे दिन फकीर और बादशाह एक दूसरे गांव की तरफ रवाना हुए। एक बाजार में गए जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ लगी थी। मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ कामों में सौदेबाजी में मसरूफ थे और वो लोग बहुत ही जल्दबाजी में थे। फकीर ने कहा, यहाँ पर तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। उस वक्त एक शख्स बादशाह के करीब आया और कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद फरमाइए। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा। फकीर ने सर हिलाया और कहा, और मजीद लोगों से मिले और अपने दिल से फैसला ले और देखो कि सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन है। बादशाह ने लोगों से मुलाकात की और उसके बाद अक्ल और दानाई से फैसला किया और मजीद लोगों की मदद की। ये बादशाह का दूसरा सबक था। ये देखकर फकीर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अपने दिल की सच्चाई को समझना और सही जगह पर सखावत करना एक बादशाह का असली फन है। बादशाह कहने लगा, सही फैसले के लिए दिल और अक्ल की जरूरत होती है। फकीर ने कहा, एक सबक और भी बाकी है, चलो मेरे साथ और देखो कि गुरूर और तकब्बुर कैसे इंसान की तरक्की का रास्ता रोकते हैं। चलते चलते एक गांव के किनारे बाग में पहुंचे और वो बाग का मालिक आया और कहने लगा, मैं इस बाग का मालिक हूँ और यहाँ जो कुछ भी है सब मेरा है और ये मेरी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये बाग हमेशा तुम्हारे पास रहेगा? बाग के मालिक ने कहने लगा, जब तक मैं हूँ ये बाग मेरा है, उसके बाद मेरी आने वाले नस्लों के हवाले किया जाएगा। ये बात सुनकर फकीर ने मुस्कुराते हुए बाग के मालिक की तरफ देखा और कहने लगा, आपके बाग में ऐसा कोई दरख्त है जो खुद आपने उगाया है? बाग के मालिक कहने लगा, मैंने अपने नौकरों से कहा था और उन्होंने ये बाग बनाया है और मैं इसका मालिक हूँ। उस वक्त फकीर कहने लगा, मालिक होना और मेहनत करना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। फकीर ने एक छोटे मुरझाते पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इंसान की जिंदगी की हकीकत उस पौधे की तरह है। गुरूर करने वाले लोग अक्सर सोचते हैं सब कुछ अपने काबू में है, लेकिन अल्लाह ताला के कुदरत के फैसले कुछ निराले होते हैं। ये बातें बादशाह के दिल में गहरी उतरने लगी और बादशाह सोच में डूब गया। उस वक्त फकीर ने फरमाया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। उन्होंने एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे
और जहां से सारा शहर नजर आता था। बादशाह ने पहाड़ की चोटी पर खड़े शहर की तरफ देख रहा था। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उस चरवाहे की तरफ इशारा करते हुए फकीर ने कहा, देखो उस चरवाहे को। जब उन्होंने चरवाहे से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? चरवाहे ने कहा, मैं इन भेड़ों का ख्याल रखता हूँ, बदले में ये मुझे मोहब्बत और सुकून मैसर करते हैं। उस वक्त फकीर ने बादशाह से कहा, तुम्हारी भी मिसाल इस भेड़ और इस चरवाहे की तरह है। जब तुम लोगों की खिदमत, उनकी मदद और उनकी जरूरियात को समझोगे तो लोग तुम्हें कामयाब बादशाह और आला मुकाम और हैसियत देंगे। एक कामयाब हुक्मरान की निशानी होती है कि वो अवाम को खुश रखे, अवाम की खिदमत और उनकी जरूरियात को समझे और उनकी खुशी में खुश रहे और अवाम को नजरअंदाज ना करे। और फरमाया, सुकून ताकत में नहीं, दौलत में नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत करने में असली सुकून मैसर होता है। बादशाह को उस बात का गहरा एहसास हुआ। बादशाह कहने लगा, मैं तुम्हारी इन बातों को, इस सबक को हमेशा याद रखूंगा और लोगों की खिदमत करना ही मेरी जिंदगी का असली मकसद होगा। फकीर कहने लगा, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, लेकिन जब भी कभी तुम्हें गुरूर महसूस हो, उस वक्त तुम अपने अवाम के जिंदगियों को देखो और अपने आसपास के लोगों के पास जाकर उनकी जिंदगियों का मुशाहिदा करो, जिससे तुम्हारे दिल में कभी गुरूर पैदा नहीं होगा और यही बात तुम्हें जमीन पर रखेगी। उसके बाद बादशाह ने फकीर को कुछ सिक्के इनाम के तौर पर अता किए और फकीर अपने रास्ते चल दिया और बादशाह वापस अपने महल लौटा। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और भी मजीद वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।